Hello everyone. Today we are going to start with the topic of project appraisal. So first of all, let's try to understand what do you mean by the word appraisal. Appraisal is nothing but it is the assessment or evaluation of something. When you try to estimate anything, the tool which we use is appraisal, right? So when we are saying project appraisal, so this is like appraising or assessing the project. Assessing the project in what sense? Project appraisal is a process of detailed examination of several aspects of a given project. It is a process जो हम लोग एक डिटेल एग्जामिनेशन जिसमें हम करते हैं ऑफ अ प्रोजेक्ट फ्रॉम वेरियस एंगल्स, अलग अलग एंगल से अलग अलग एस्पेक्ट से हम उसको करते हैं. एंड व्हाई डू वी डू दैट? इट इज कंसीडर्ड दैट प्रोजेक्ट अप्रेजल इज अ structured process. Structured process means in the sense it is already decided what steps are to be followed. So एक structure decided होता है, उसके basis पे we start doing our assessment for assessing, for estimating the viability of a project before committing resources to it. क्यों viability हम उसकी check करते हैं? Viability means capability to succeed. Capability to succeed means whether that project will be a successful project or it will be a failure project. वो check करने के लिए कि उसमें कितनी probability है कि ये project हमारा successful होगा. That's why we do the project appraisal. हम उसको check करते हैं, उसकी assessment, उसकी viability, because every project needs the commitment of your resources and time, right? हर project को resources और time हम लोगों को देना पड़ता है. So it is must that before that we perform our appraisal, we get to know whether this project can be a successful project or it cannot be a successful project. If from the appraisal you get to know that this project has no viability, it cannot be a successful project on any cost, फिर कोई point नहीं है कि आप आपके उसमें resources and आपके time उसके अंदर waste करो, right? So that's why every company before taking up a project, हर कंपनी एक डिटेल एग्जामिनेशन करती है, अलग अलग एंगल से देखती है वो प्रोजेक्ट कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे इट हैज द मोर chances to succeed, right? So it is project appraisal is used as a tool by the company for selecting the best project. So out of those, when you have 3-4 projects in the hand, you perform a project appraisal and you try to pick up the best one, ताकि हम लोग सिर्फ वही प्रोजेक्ट को पिकअप करें जो हमें best results देगा. So other than that, financial institutions, right? Every project gets funded from the either bank or any financial institution, right? So that financial institution also perform the project appraisal कि हम ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट को तो हम फंड नहीं कर रहे हैं. What if that project is not worthwhile, right? It should be worthwhile कि it should be satisfying कि उनकी जो requirements है उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर it has the potential, तभी वो आपके प्रोजेक्ट को फंडिंग करेंगे, उसको फंड्स अवेलेबल करवाएंगे, राइट? अदर देन दैट, लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो इंटरेस्टेड. दे मेक श्योर कि आपका जो प्रोजेक्ट है वेदर इट विल बी इन द पोजीशन कि वो उतना प्रिंसिपल अमाउंट और इतना रिटर्न इतना रिटर्न्स वो जनरेट करेगा या नहीं करेगा कंपनी के लिए, कि कंपनी ने जो लोन लिया है कंपनी उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है उसको पे बैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. So for these angles, for company point of view also, for institutions also, for lending institution also, everybody is interested in the project appraisal. कि अगर आपके प्रोजेक्ट में lending institution को लगता है कि वो प्रोजेक्ट इतने रिटर्न्स दे ही नहीं पाएगा कंपनी को कि कंपनी आपका लोन रीपे कर पाए, so there is no point, they won't be assisting you in the funds. So basically, how this project appraisal can be defined? It can be defined as a pre-investment analysis of project with a view to determining the overall feasibility. Overall feasibility in the sense, overall viability, overall successful कितना होगा हर एंगल से, और whether, and it measures its investment worth, which provides a comprehensive review, assessment of all aspects of project that lays the foundation for implementation and evaluation when it is completed. So कंपनी क्या करती है? कंपनी एक ओवरऑल फिजिबिलिटी चेक करती है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से उस प्रोजेक्ट का, कि आप जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डालोगे इट शुड बी वर्थ दैट इन्वेस्टमेंट, राइट? एंड बिकॉज देन इट लेज द फाउंडेशन. उसके बाद अगर आपने लगता है कि इट वुड बी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट,
then you would go for the implementation, right? Then what are the objectives of project appraisal? See, we know that company is interested in knowing the economic effect of the project, economic angle, social angle, financial viability. इसलिए करते हैं हम लोग, so that we get to know कि economically वो project कैसा रहेगा हमारे लिए, socially कैसा रहेगा, and financially उसकी viability आएगी या नहीं आएगी. Then secondly, it help you in taking up a decision whether to accept a project or to reject a project. That means उस project को आपको accept करना है, reject करना है, ये सब decide आप after the project appraisal ही कर सकते हो. Before conducting any appraisal, before doing any evaluation or detailed examination, you cannot decide just because I'm liking project B, so I would take up project B. No, there has to be a logically detailed evaluation which is to be done before taking up a decision whether to go for the project or not. Then it is a tool to check the viability of project proposal. So it is used as a tool जिससे आप चेक करते हो कि it has the ability to succeed or not, वो आपके लिए feasible रहेगा या नहीं रहेगा. So we have different aspects in project appraisal. Every project has an economic aspect, it has technical aspect, organization point of view, managerial aspect, operational capability of the project, and also the financial viability, financial aspect of the project. See, आपको project जो check करना है वो सिर्फ एक angle से नहीं करना है. You have to do a comprehensive review of the project, comprehensive appraisal of the project. So that means economic appraisal. In the sense, economic appraisal means that project has to be of priority use for the economy. Priority use में होगा, high priority sector में होगा, then it is very good. Then there is a short chances that it would be a successful project, right? Then technically वो आपका प्रोजेक्ट जो है उसका स्केल ऑफ प्रोजेक्ट क्या रहेगा, कौन सा प्रोसेस डिप्लॉय किया जाएगा, कैसे क्या होगा, टेक्निकली यू वुड चेक दैट. देन ऑर्गेनाइजेशन में उसकी सुटेबिलिटी है या नहीं है, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फिलोसफी क्या है, वेदर इट इज सुटेबल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और नॉट, राइट. देन मैनेजर मीन्स वो प्रोमोटर्स की जो कॉम्पिटेंसी है, प्रोमोटर्स के लिए एडिक्वेट है या नहीं है, प्रोमोटर क्या चाहता है और क्या उस प्रोजेक्ट से उसे मिलेगा, that is to be checked here. Okay, it should be compatible with the promoter as well. Then operational capability क्या है प्रोजेक्ट की, operationally how it would be operated. Then financial, where it will determine the financial viability of sound implementation and efficient operation. Whether financially आपको कितने return generate करेगा, क्या उसमें risk involved रहेगा, कैसे होगा financial point of view से. Those are all the angles which we see. Now let's check them out in detail one by one. First comes economic aspect. Economic aspect precedes all other aspects. That means before going for any other analysis, any other appraisal, first of all you have to check the economic angle. Economic angle in the sense, see, every bank doesn't fund all the projects, right? अगर बैंक को लगता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है it is of high priority, it belongs to high priority sector or industry, then it becomes a cakewalk to get it funded from the bank, because उसमें आपके लोकल रीजन के क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, कहाँ पे वो स्टेब्लिश है, उससे इकोनॉमी को कितना फायदा होगा, तो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा, राइट. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पे देन यू विल डिसाइड या इकोनॉमिकली दिस प्रोजेक्ट इज वायबल और इट इज नॉट वायबल. तो आपके इकोनॉमिकली आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या आउटपुट निकाल के दे रहा है, किस टाइप का आउटपुट उसका देगा, वो सर्विसेज में कुछ इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, गवर्नमेंट रेवेन्यूज में उसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वेदर इट विल इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, वेयर इट विल बी for those people who are employed and for those in that area where it would be set up. Then national income में उसका कोई contribution रहेगा या नहीं रहेगा, वो income distribution पे हाँ किस तरह से impact करेगा, कुछ contribute करेगा या नहीं करेगा. So from all these point of view that project is to be studied,
and if it passes this, it passes the economic aspect, then you go further to check the other angles. Then comes your organizational aspect. Organizational aspect means the financial institution place particular stress on the need for an efficient organization and responsible management for the execution of the project. See, आपका जो project है, आपके organization में वो fit हो रहा है या नहीं हो रहा है. So what is your organization structure? उसमें authority, responsibility, status क्या है? किस type का आपका organization है? Whether it is a sole proprietorship, it is partnership, it is company, it is private company, it is public company. तो उसके accordingly वो project वहाँ पे set हो रहा है नहीं हो रहा है, किस type का आपका organization का culture है, आप कैसे करते हो, staffing कैसे करते हो, how are you recruiting the people, then how do you train them. तो उसमें organization के अंदर it should be fitting up, right? So we have 4 aspects in organizational this. First is structure, which talks about your authority, responsibility, status, right? Authority, responsibility, management आपका कैसा है, organization का vision, organization का philosophy क्या है, right? Organization के objectives क्या है, वहाँ पे वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप कैसे रिक्रूट कर रहे हो आपके स्टाफ को, then how are you training them. So it should be from all these point of view. What if that project which you are taking up in your organization, उसके लिए your staff needs to be specially skilled and that skill training is not available in your area, then how would you know, that would increase the cost of the project manifold. अगर आप आपके staff को कहीं दूसरी कंट्री में उसकी ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हो, आपकी ट्रेनिंग से उसकी ट्रेनिंग बहुत अलग है उस प्रोजेक्ट के लिए जिनको काम करना है उसके ऊपर. So that all these aspects is to be checked. After that we move to managerial aspect. Managerial aspect is considered as very crucial when it comes to project appraisal, because you know it is rightly said कि एक failure, एक poor project can be successful depending upon the managerial efficiency, and the same goes vice versa. But even a very good project can be a fail because of the poor management, right? So आपका management का इतना ही important role है, no matter कि कितना अच्छा project था, if your management is not efficient enough, is not competent enough, your project can fail. And even if the project is just average or just okay, but your management did a very good job, it worked very efficiently on that, then it can become a successful project, right? So that's why we say that management is very important aspect. So American Institute of Management ने first time जब managerial aspect पे काम किया था, they came out with the results. They said कि total weight जो earnings के हैं एक project में, it should be given only 6%, and 22%, that is a very high percentage of the weight, 22% should be assigned to the quality of the executive. Quality of the executive means the management, the managing hands, right? And 13% to the board of directors, because उसका जो corporate structure है, sorry, to the executives and the board of directors, and corporate structure को 13% उन्होंने weight को assign किया. तो सबसे ज़्यादा weight दिया गया executives and board of directors, because they will be, you know, आपकी corporate की जो philosophy है, जो corporate की strategies हैं, वो सब will be framed by the, those will be framed by the board of directors and the executives. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फ्रेम की, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप उस प्रोजेक्ट को क्या शेप दे रहे हो, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, राइट? सो दैट्स व्हाई ऑलवेज मोर एम्फेसिस इज गिवन ऑन द मैनेजमेंट एस्पेक्ट. Then in managerial aspect we consider two things. First is capacity of the project to repay the loan with interest within a specified period of time. Second, to see the willingness of the borrower to repay the loan. So जो capacity project की हमें check करनी है कि loan को कैसे repay करना है, वो हम check करेंगे technical, commercial, financial appraisal से. वहाँ से हमारे पास वो निकल के आ जाएगी whether the project is capable enough to repay the loan or not within a specified stipulated period of time. Then willingness of the borrower. Willingness of the borrower means it will be assessed from
मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज प्योरली क्वालिटेटिव एंड सब्जेक्टिव कि मैनेजमेंट का क्या थिंकिंग प्रोसेस है, क्या थॉट प्रोसेस है. Sometimes it happens that your management is not interested. Even if you are doing well on your project, you are earning well, you are not ready to repay the loan. So that would be decided from your managerial opinion, managerial perception, right? Because जो एनपीएस के जो केसेस आते हैं मोस्टली इसलिए आते हैं बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिपेइंग द लोन. इट्स नॉट बिकॉज कि प्रोजेक्ट अच्छा नहीं कर रहा है. there have been many cases, many instances where projects are doing very well, they are getting the returns, but management is trying not to repay, and so that they can make some adjustments and they can make use of that money which they have borrowed from the bank, right? तो इसलिए उनकी विलिंगनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट अप्रेजल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इट इज टोटली सब्जेक्टिव, राइट? सो इट डिपेंड्स कि आपके एंटरप्राइज का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है. तो उसमें आपकी मैनेजमेंट के लिए फोरसाइटेडनेस कितनी है, उनकी इंटीग्रिटी कितनी है, उनके परसिवरेंस कितनी है, व्हाट आर द द सब्जेक्टिव क्वालिटीज योर मैनेजमेंट इज होल्डिंग, that would be decided on that. Then moving on to the technical appraisal. Technical appraisal means there are many points, so we need to go through it in detail. We'll be seeing each and every title in detail. See, technically आपका प्रोजेक्ट जो है वो कितना साउंड है और कितना सपोर्टिव है, कितना वाइबल है. What about that technical a very high technical project which might not be supported in your area or in your country, right? So technically it should be very going with your organization and with your management. So first we have selection of process or technology. That means कि हम वो टेक्नोलॉजी चेक करते हैं, वो टेक्नोलॉजी या प्रोसेस हम डिसाइड करते हैं, चूज करते हैं जो हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इट विल डिसाइड, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन, इन द सेंस कि हम इसमें सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस लेते हैं. पहले तो कौन सा प्रोसेस टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करना है, उसके बाद हम देखते हैं साइज ऑफ द प्लांट क्या होना चाहिए, देन जो रॉ मटेरियल आप सेलेक्ट कर रहे हो किस टाइप के रॉ मटेरियल आपको सेलेक्ट करने हैं, इट शुड बी लोकल रॉ मटेरियल और यू नीड सम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल. देन टेक्निकल नो हाउ क्या होगा आपके प्रोजेक्ट का. कोलैबोरेशन अग्रीमेंट इन द सेंस कि आपका प्रोजेक्ट जो है आपको उसके लिए टेक्नोलॉजिकली कोई आपको अगर अग्रीमेंट बाहर से करना पड़ेगा तो किसी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा. तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा आपके प्रोजेक्ट का, किस टाइप की वैरायटी आप अवेलेबल करवाएंगे. देन सिलेक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. जो आप प्लांट एंड मशीनरी को सेलेक्ट करेंगे, प्रोक्योर करेंगे, उसको कहीं से अवेल करेंगे तो कहाँ से करनी है, किस बेसिस पे करनी है, आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या होगी, फिर प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग क्या होगी, एक्टिविटीज सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज क्या होगी, एंड कैसे उसको फाइनली इंप्लीमेंट किया जाएगा, राइट? सो फर्स्ट मूविंग ऑन टू द सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी. सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी से क्या होता है, हमारे पास सेम ही चीज को प्रोड्यूस करने का, सेम ही आउटपुट देने के बहुत तरह के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. प्रोसेसेस आर मेनी, राइट? तो आप उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. बिकॉज सपोज सीमेंट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ईदर बाय वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस. So that depends कि which process you are choosing, whether you are choosing a wet process or you are choosing a dry process, that would depend upon you. And फिर जो process आप choose कर रहे हो, on that basis you will decide कि आपको फिर किस टाइप की मशीनरी यूज करनी है. वेट प्रोसेस की मशीनरी डिफरेंट होगी, ड्राई प्रोसेस की डिफरेंट होगी, राइट? देन सेकेंडली द टेक्नोलॉजी विच यू आर चूजिंग, दैट डिपेंड्स कि आपका फोकस जो है आपके प्रोडक्ट का, इट इज ऑन द क्वालिटी or it is on the quantity. Suppose you want to produce very high quality product, so उसके लिए आपको बहुत sophisticated, बहुत high tech technology चाहिए, right? So but if you are focusing on the mass production, आपको ज्यादा quantity में produce करना है, तो उसके लिए आपका हो सकता है कि टेक्नोलॉजी, नॉर्मल टेक्नोलॉजी विल वर्क, जो बस आपकी कॉस्ट कटिंग कम करेगी और मास प्रोडक्शन आपको दे देगी, राइट? सो इट डिपेंड्स कि आप
किस टाइप का प्रोसेस चूज करते हो वो आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी चूज करेगा. सेकेंडली, टेक्नोलॉजी को यू कैन परचेज ऑल्सो और यू कैन ऑब्टेन इट ऑन लीज ऑल्सो. दैट डिपेंड्स. किसी के पास किसी ने कुछ इन्वेंट किया हुआ है, कोई नया प्रोसेस पेटेंट करवाया हुआ है, सो यू कैन you can take the lease from that person. You can use the licensing arrangement. आपको यहीं से परचेज, अगर आपको लगता है it is within the limit, it is not very expensive, it is falling within the budget, you can always buy the technology. Otherwise there are other arrangements. तो अगर आप लाइसेंसिंग या कुछ और लेते हैं तो उसके लिए आपके जो भी नॉर्म्स हैं वो आपको यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोस नॉर्म्स. देन सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. आपको लोकली आपको वो टेक्नोलॉजी सूट कर रही है. सी, एवरी टेक्नोलॉजी इज नॉट सुटेबल एवरीवेयर. देयर इज नो यूनिवर्स टेक्नोलॉजी, राइट? सो हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी आपने बाहर से इंपोर्ट कराई है वो बाहर की कंट्री में सुटेबल थी, बट इट माइट नॉट बी सुटेबल इन योर एरिया और इन योर कंट्री. कि लोकली आपको सूट नहीं कर रही है, इकोनॉमिकली या सोशली आपको सूट नहीं कर रही है. फिर जो आप टेक्नोलॉजी आपने यूज कर रहे हो उसका इकोलॉजिकली उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, हाउ इट इज इम्पेक्टिंग द एनवायरमेंट, राइट? एनवायरमेंट को अगर इम्पेक्ट कर रहा है उसके लिए आपको किस टाइप का रॉ मटेरियल लगेगा उस प्रोसेस को या उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए. वो रॉ मटेरियल आपके इधर लोकली वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट, which kind of manpower you will be requiring. If you require a set of very skilled or very specialized kind of manpower, then it might not be available to you. So considering all these points, then you adopt the appropriate technology, right? And उसका अगर environment पे कुछ negative impact है या उसका जो effluent जो निकल के आ रहा है उसके लिए हमें कैसे deal करना है. Then scale of operation, it signifies the size of the plant. Size of the plant in the sense कि it will depend आपकी same thing. If you are focusing more on quantity, then it has to be a mass production. Size of the plant has to be on large scale. If you are focusing on quality, it would be a small scale plant, right? So economic size of the plant for a given period can be analyzed by operating and capital cost. और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, फैब्रिकेशन इक्विपमेंट का कहाँ पे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कैसे होगा, इक्विपमेंट को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, कैसे बिल्डिंग को इरेक्ट किया जाएगा, किस प्रॉपर लेआउट से, प्रॉब्लम्स जो प्रोडक्शन की इनपुट्स की प्रॉब्लम्स हैं उन सबको डील करते हुए दैट स्केल ऑफ द ऑपरेशन वुड बी डिसाइडेड. कि आपको साथ में उसके साथ ये अलाइड फैक्टर्स हैं वो भी चाहिए, whether it would be available or not. On that basis you would decide the scale of operations. Then we have the raw material. Raw material, you can use the indigenous raw material also locally which is available to you, or you can ask for the outside. You can import also or from some other area also. So that depends. See आपका किस टाइप का raw material आपको यूज करोगे, उसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पे है या नहीं है, उसके बेसिस पे you will decide what would be your process of manufacturing, right? So process of manufacturing is process of manufacturing will decide the type of machinery. So it is all intertwined, right? So that's why your raw material से start होके आपकी बात process पे आएगी and process से आपकी decide होके machinery पे आएगी. So what would happen? See, if the precipitated calcium carbonate is to be produced, there are two ways. कि वो हम किससे produce कर सकते हैं, या तो हम लाइमस्टोन से कर सकते हैं या हम शेल लाइम से कर सकते हैं. एंड शेल लाइम इज जनरली अवेलेबल इन द सी शोर एरियाज, दैट मीन्स कोस्टल एरियाज पे, सी शोर्स पे हमें अवेलेबल होता है. ऑल्दो लाइमस्टोन जो है हमें बहुत जगह ऐसे उसकी डिपॉजिट्स माइंस अवेलेबल होती हैं, राइट? लाइक इन there is a Nagaur district in Rajasthan, there you get lots of limestone and there is mining done for limestone, right? So now it will depend कि आपको सेम ही आउटपुट है precipitated calcium carbonate, but आप उसको limestone as a raw material use कर रहे हो या shell lime use कर रहे हो. If you are using shell lime and you are establishing your plant in north, maybe in Hisar or in Rajasthan, so it won't make any sense because आपको आपका shell lime जो है वो गोवा से या किसी उधर बंगाल की साइड से या साउथ से आपको उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. दैट वुड इंक्रीज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. So it doesn't make a sense.
बट अगर आपको लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल यूज करना है देन यू कैन गो फॉर इट, बट शेल लाइम अगर आपको एज अ रॉ मटेरियल यूज करना है तो इट इज बेटर दैट यू एस्टेब्लिश योर प्लांट समवेयर नियर द कोस्टल रीजन, राइट। सो दिस इज हाउ इट वुड बी डिसाइडेड दैट आपका टाइप ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो आपका पूरा प्रोसेस चेंज कर देगा। Then comes technical know-how. Technical know-how means for the project is provided by expert consultants. Expert consultant हमारे पास टेक्नोलॉजिकली हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है, हमारे पास जो नॉलेज है टेक्निकल है हमें जो चाहिए वो हमारे पास एक कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं। कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं इन द सेंस कि उसके बाद हमें दैट कंसल्टेंट हैज टू बी गुड इनफ कि हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, राइट। कि हम जो उसको वो हमारी जो रिक्वेस्ट उसके पास हमें गाइड करने के लिए वेदर दैट कंसल्टेंट हैज द रिक्विजिट नॉलेज और एक्सपीरियंस, उसको इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस है या नहीं है, या फिर इट इज हिज फर्स्ट टाइम, ही हैज नेवर डेल्ट विद एनी प्रोजेक्ट बिफोर, उसने इस टाइप का प्रोजेक्ट कभी हैंडल ही नहीं किया है, सो ही माइट बी न्यू। तो उसने पहले अगर इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया हुआ है तो ही नोज एवरीथिंग कि कैसे क्या करना है, क्या प्रोसीजर होगा, एंड यू नो जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो कैसे कंप्लीट करनी होंगी, और क्या क्या अलाइड सर्विसेज अलाइड चीजें हमें रेडी करके रखनी है, all everything which belongs to the vicinity of the project, right? So this is a very important aspect. It necessary agreement should be executed between the project promoter and the know-how supplier. जो हमें सप्लाई कर रहा है उसके और प्रोजेक्ट प्रमोटर के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाता है। इसके लिए आपको जो भी अदर लॉज हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी क्लोजेस हैं you have to take care of all those laws and clauses while entering into the agreement. Then we have product mix. Product mix, see, every customer has different needs or they have some, you know, they ask for some customization कि नहीं मुझे इतने बड़े साइज में चीजें यूज नहीं होती है, आई हैव स्मॉल फैमिली और आई एम लिविंग इंडिविजुअल, तो मैं तो स्मॉल क्वांटिटी में यूज करता हूँ। सो प्रोड्यूसिंग द वैरायटी ऑफ sizes or variety of the product, that is very must, and that forms a part of your technical appraisal. In order to enable the project to produce goods of varying sizes, nature and quality as per the requirements of the customer, the product facilities should be planned with an element of flexibility. So your project should always be, it should not be a rigid project, it should be always flexible एंड इट शुड बी ऑलवेज प्रोड्यूसिंग कि हर वैरायटी में आपको वो अवेलेबल करा रहा है, और उसके बहुत सारे वेरिएंट हैं, उसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, कुछ अलग अलग क्वालिटीज उसमें है, that it is A grade quality, it is only A quality, and it is some kind of B quality. So in that ways you can categorize the products कि ये बड़ी पैकिंग में है, ये छोटी पैकिंग में है, it is very handy. So you know, so that you are meeting the requirements of all kinds of customers. तो उसको हम प्रोडक्ट मिक्स अवेलेबल कराते हैं। जैसे कि एक प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो अब उनके पास बहुत डिफरेंट साइजेस की डाइज होती हैं कि दे आर एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट स्मॉल काइंड्स ऑफ कंटेनर्स आल्सो, प्लास्टिक कंटेनर, देन लिटिल बिग, देन लिटिल बिगर, एंड देन मे बी फॉर यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम 250 grams to 500 grams, then 1 kg, then 5 kg, 10 kg, and maybe 20 kgs. So they keep the different sizes of dies, whatever the requirements are there, and they try to produce the all variety of products so that they can cater the needs of all the customers. Then comes your selection and procurement of machinery. जब आप मशीनरी को सेलेक्ट करते हैं एंड बाहर से प्रोक्योर करते हैं, then what are the things to be taken care of? तो that would depend कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हो, राइट? आपने प्रोसेस डिसाइड कर लिया कौन सा प्रोसेस एडॉप्ट कर रहे हो, उसके बाद आपने टेक्निकल नो हाउ देख लिया, टेक्नोलॉजी कौन सी आप एडॉप्ट करोगे, उसके बाद यू विल डिसाइड कि हाँ ठीक है फॉर दिस टेक्नोलॉजी आई नीड सो एंड सो मशीनरी। ये तो बाद में बात आएगी कि आपको किस टाइप की मशीनरी यू हैव टू प्रोक्योर। देन कैपेसिटी ऑफ ईच मशीनरी इज टू बी डिसाइडेड। सी हर मशीनरी की कैपेसिटी अलग होती है, कुछ मशीनरीज आपको ज्यादा आउटपुट देती हैं, कुछ मशीनरीज कम देती हैं, कुछ मशीनरीज एक पर्टिकुलर टाइप की क्वालिटी पे काम करती हैं, कुछ मशीनरीज एक पर्टिकुलर काइंड के प्रोडक्ट पे काम करती हैं।
सो आप एक रफ एस्टिमेट लेते हो कि सब मशीनरीज का रफ एस्टिमेट बनाते हो कि ओके इस मशीनरी की टोटल आउटपुट मुझे ये मिलेगा, उसका टोटल प्रोडक्शन मुझे इतना मिलेगा, इसका इतना मिलेगा, एंड ऑन दैट बेसिस यू देन डिसाइड कि उसके बाद हमें जो इससे रिलेटेड इससे अटैच्ड जो यूटिलिटीज होंगी उसको हम कैसे वो करेंगे, कौन कौन सी यूटिलिटीज हमें साथ में यूज करनी पड़ेंगी, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें साथ में अटैच करने पड़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल कितना है, if I want to move from the B quality products to the A plus quality, whether this machinery will be able to fulfill my needs, उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उससे जो हमें एफ्लुएंट डिस्पोजल के लिए हमारे पास कोई मेथड है या नहीं है, उससे जो वेस्ट एफ्लुएंट मीन्स जो आपका वेस्ट निकल के आ रहा है उसको हमें डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, उसको कहाँ करना पड़ेगा, जो मटेरियल हैंडलिंग होगी उसको हम कैसे करेंगे हैंडल, राइट। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ द मशीनरी फ्रॉम द रिलायबल सप्लायर, जो सप्लायर उस मशीनरी में he or she has been working from a many years, then generally that supplier is considered as reliable, right। तो उसका एक पास डेटा होता है, एक पास हिस्ट्री होती है, ऑन दैट यू कैन सी कि ये सप्लायर इसमें लाइन में डील कर रहा है एंड किस टाइप की सर्विसेज देता है, व्हाट आर द आफ्टर सेल सर्विसेज, किस किस चीज में आपको असेस करता है या नहीं करता है। देन यू हैव प्लांट लेआउट, plant layout in the sense the efficiency of manufacturing operations depends upon the layout of the plant and machinery। see आपका जो layout है वो decide करता है कि आपका जो production area है how nicely it has been arranged, कितने अच्छे से उसका layout आपने decide किया हुआ है, so that it ensures कि आपका एक smooth flow of production और smooth flow of work is happening, जिससे आपका फ्यूटाइल एक्टिविटी, फ्यूटाइल टाइम वो सब कट हो जाता है, अननेसेसरी आपका जो टाइम और जो एफर्ट्स हैं वो नहीं लगते हैं, आपने यू हैव अरेंज इट सो नाइसली दैट यू नो वन एक्टिविटी रिलेटेड टू द अदर इज स्मूथली लीडिंग टू, जिसमें कोई आपको ऑब्स्टेकल नहीं आता है। इट कैन बी रिलेट, तो लेआउट आप जब करते हो इट कैन बी यो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोसेस ऑल्सो एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्ट ऑल्सो। प्रोडक्ट्स में जनरली आप कौन सा लेआउट लेते हैं, यू टेक द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, राइट। वो प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज से गया, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। एंड इन केस ऑफ प्रोसेस लेआउट यू कंसंट्रेट, एक प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है, एक टाइप का प्रोसेस यहाँ पे होता है, एक टाइप का सपोज मिलिंग की सारी मशीनरीज एक साइड रखी जाती हैं ताकि मिलिंग वाला वहां पे हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट वो रिफाइनिंग के लिए किसी के लिए जाए। सो यू कैन चूज इधर प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट, दैट डिपेंड्स कि आप किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है, क्या आपका आउटकम है, क्या आपका डिलीवरेबल है, राइट। सो इट शुड बी अरेंज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर सो दैट इट लीड्स टू अ वेरी स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, एक बहुत स्टेडी फ्लो रहता है which should not be hurdled। Then you have the location of the project, location whether your project is located within the country or outside the country। अगर कंट्री के बाहर आप इस्टेब्लिश कर रहे हो तो देयर ऑल्सो यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द रीजनल फैक्टर्स कि उसकी रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी वहां पे कितनी है, व्हाट इज द proximity to market, proximity in the sense nearness to market, ओके। तो आपकी मार्केट की प्रोक्सिमिटी कितनी है, आपकी रॉ मटेरियल से प्रोक्सिमिटी कितनी है, आपका जो लेबर का वहां पे है, वेदर यू हैव द स्किल्ड लेबर अवेलेबल और नॉट, और अनस्किल्ड लेबर, आपका कैपिटल इंटेंसिव है तो यू वुड बी लुकिंग फॉर less labor and more on funds, and if it is a labor intensive project then you would be concentrating, then labor becomes it plays a very vital role there। then supporting industries है या नहीं है, पावर का वहां पे क्या सिस्टम है, sometimes what happens कि पावर प्लांट्स जहाँ पे स्टेब्लिश होते हैं आप उसके आसपास ही आपका प्रोजेक्ट स्टेब्लिश करते हो, then you get the power is available to at the subsidized rates। तो आपको बहुत कम रेट पे सब्सिडाइज रेट्स पे पावर अवेलेबल हो जाती है। वाटर अवेलेबिलिटी इन सम प्रोजेक्ट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यू नीड ह्यूमिडिटी कि इट शुड बी ह्यूमिड, तो ह्यूमिड क्रिएट करने के लिए आपको वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टेक्सटाइल्स के लिए। सो देन वाटर शुड बी अवेलेबल, सो इट कैन बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड। अगर आपके पास वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है
तो आप आर्टिफिशियली एक ह्यूमिड एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो विच इज गुड फॉर योर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। वहां से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है या नहीं है। सो आफ्टर डिसाइडिंग ऑल दीज फैक्टर्स then you finally you choose the location, you decide the, you take the decision of your location, right? So this is your technical appraisal. In the end, the last point which is left is project scheduling in technical appraisal. Project scheduling is nothing but it is the arrangement of the activities of the project in the order of time in which they are performed. कि आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, आप अप्रेजल कर लिया है, बट उसके बाद यू शुड बी नोइंग कि हमें पहले कौन सा क्या स्टेप लेना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इट इज नॉट दैट कि सबसे पहले आप जाके बिल्डिंग बनाने लग जाते हो या फिर उससे पहले आप अपनी मशीनरी ऑर्डर कर देते हो, उसके बाद यू विल स्टार्ट। ऐसा तो नहीं होता, राइट? सो व्हाट डू यू डू? सबसे पहले आप लैंड एक्वायर करते हो कि जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना है, आप उसके लिए लैंड एक्वायर करोगे। उसके बाद एक साइट डेवलपमेंट करोगे कि उसके आसपास क्या क्या फेंसिंग होनी चाहिए, उसके लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग कैसी होगी, किस डिजाइन से आप उसको फ्रेम करोगे, कैसे डिजाइन करोगे। उसके बाद जो भी आपको एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, किस किस डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल्स लेनी है, एनओसी लेनी है, तो वो सब आप लाइसेंसेस लेके उसके बाद यू कॉन्टेक्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी स्टार्ट कर दी है, मशीनरी की फाउंडेशन आपने स्टार्ट कर ली है, या जो भी सिविल वर्क उससे रिलेटेड है आप वो करते हो। आफ्टर दैट यू प्लेस एन ऑर्डर फॉर योर मशीनरी। जो मशीनरी आपको चाहिए ये सब करने के बाद यू वुड बी प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर मशीनरी, एंड ऑन द रिसीट ऑफ द मशीनरी एट साइट you will receive the machinery, you will start installing it, you will erect the plant in the sense when it is already erected, वो आपका प्लांट वहां पे खड़ा हो गया है स्टार्ट होने के लिए। then you would start the commencing, your plant will commence, your project will commence, it is the commissioning of plant. plant जब चालू हो गया है that is your commissioning and that is the commencement of your project. उसके बाद आपका project start होगा, but before that we have some other appraisals, market appraisals and financial appraisals, that also we need to cover in detail, so that we will be continuing in the next class. So that's all for today. You can put up your queries now.